کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے رائج کر رکھا ہے. خدارا آپ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بزرگان دین کے مدارات سے دنیا کو یہ پیغام مت دے کہ ہمارے بزرگ ہماری جماعت کے اولیاء کاملین اللہ کے محبوب ترین نیک بندے رقص سرود کے عاشق ہوا کرتے تھے, ناچ گانے کے شوقین ہوا کرتے تھے. نہیں, بزرگوں کے معمولات یہ بتاتے ہیں, بزرگوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے, بزرگوں کی ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتی تھی, ایک ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزر جایا کرتا ہے. پوری رات گزر رہی ہے, زمانہ سو رہا ہے, مگر اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو منانے کی فکر کر رہا ہے. اے میرا بھائی, اگر تم چاہتے ہو ہم بزرگوں سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو بزرگان دین کا طرز عمل اپنانا ہوگا, ان کے جیسا رہن سہن, ان کے جیسے معمولات زندگی پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اپنا چہرہ اسلامی بناؤ, اپنا لباس اسلامی بناؤ, اپنی سوچ اسلامی بناؤ, اپنی فکر اسلامی بناؤ, اپنا نظریہ اسلامی بناؤ, اپنا انداز زندگی اسلامی بناؤ, جینے کے طریقہ اسلامی بناؤ, مرنے کا ذہن اسلامی بناؤ. آپ تعلیم کے قریب آئیے, آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیے. دنیا میں تعلیمی معاملات میں سب سے پیچھے کوئی قوم ہے تو کوئی اور نہیں, وہ قوم مسلم کہی جاتی ہے. زمانہ آج ہم پر طنز کر رہا ہے, دنیا ہم پر تانے مار رہی ہے کہ اگر کوئی جاہل قوم تمہیں دیکھنی ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلم سماج کو دیکھ لو, مسلمانوں کو دیکھ لو, سب سے بڑی جاہل قوم مسلمانوں کی ہے. ایک وقت تھا جب قلم ہمارے ہاتھوں میں تھا, دنیا ہمیں سلام کرتی تھی. آج ہماری قوم کے لوگوں نے تعلیم سے اپنا رشتہ اس طرح توڑ لیا ہے, تعلیم سے اس طرح اپنا رشتہ جدا کر لیا ہے کہ تعلیم سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اگر بینک میں پیسہ نکالنے جانا ہے تو بیٹھا ہم دوسرے کے سامنے لیے محتاج بنے کھڑے ہیں, بھیا ذرا میرا بھی پرچہ بھر دو, 4,000 روپے لینے ہیں, وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں, کسی سے اور جا کے بھروا لو. آپ کر لوگوں کے سامنے خوشامد پرستی کے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں, میرا بھی پرچہ بھر دیجیے, مجھے 4,000 روپے لینے ہیں. اگر مینیجر یا سیکریٹری نے اسے واپس کر دیا کہ یہ صحیح نہیں, پھر سے بھر کے لاؤ, پھر دوسرے کی خوشامد کرتے نظر آ رہے ہو. ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا تیرے قدموں میں جھکتی نظر آتی تھی, وجہ یہ تھی کہ تیرے پاس تعلیم کا ہنر تھا, تعلیم کا زیور تھا, تعلیم کا اوزار تھا, دنیا تجھے سلام کرتی تھی. جب سے تم نے اپنا یہ تعلیمی ہتھیار دوسروں کو سونپ دیا ہے, دوسرے کی محتاجی اور غلامی کرتے نظر آتے ہو. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اے اہل جہاں آو یہ جاگیر سنبھالو, اے اہل جہاں آو یہ جاگیر سنبھالو. مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں, ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں. مسلم نام کے بہت سے راجاؤں نے حکومت کیا, بہت سے بادشاہوں نے کرسیوں پر بیٹھ کر عیاشیوں میں زندگی گزاری ہے, مگر آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ انہوں نے زندگی کو تو عیاشی کے ماحول میں گزار لیا ہے, لیکن راہ راست پر چلنے کے بجائے انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا. اس کا خمیازہ پوری قوم کو آنے والے وقت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر ہماری قوم کے راجاؤں بادشاہوں نے دین کا کام کیا ہوتا تو یہ قوم اتنی جلدی پس مردہ نہیں ہو جاتی. نوجوانوں جاگو, ہوش میں آؤ, میرے بھائی آپ بیدار ہو, آپ اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرو, رب کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کا ماسکہ پیدا کرو, اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر پیدا کرو. میری قوم کی ماں بہنوں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, تم اپنی شکم سے, اپنی کوک سے دنیا کا ڈانسر مت پیدا کرو, اپنے شکموں سے تم دنیا کا ایکٹر نہ پیدا کرو. میری قوم کی ماں بہنوں, آج یہ تاریخ تم سے سوال کرتی ہے کہ میری قوم کی ماں بہنوں, آج پھر سے یہ تاریخ تم سے مانگ رہی ہے کہ تم پھر سے صلاح الدین پیدا کرو, محمود غزنوی پیدا کرو, محمد بن قاسم پیدا کرو. پھر سے تم سے اس بات کا تقاضا یہ تاریخ کر رہی ہے کہ تم غوث اعظم کا غلام پیدا کرو, تم خواجہ کا فدار پیدا کرو, نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا بچہ پیدا کرو. اے میری قوم کی ماں بہنوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, تمہاری شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہونے کے بعد تمہیں آنکھیں کیوں دکھاتا ہے, تجھے گالیاں کیوں دیتا ہے, گھر سے نکلنے پر مجبور کیوں کرتا ہے؟ کہیں اس کی پرورش میں تو نے ضرور کمی کیا ہے, اس کے دیکھ ریکھ میں تو نے ضرور لاپرواہی سے کام لیا ہے. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلائے, توجہ سے سنیے گا, ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلائے تو دودھ پلاتے وقت ماں کی زبان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے. ایک بار
मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आज माहौल यह है, आज जमाना इस बात का मुशाहिदा करता है कि हमारी बहनें अपने बच्चों को दूध पिला रही है, माँ फिल्म देख रही है, माँ सीरियल देख रही है, माँ गाने देख रही है, माँ डांस देख रही है, माँ गानों से दिल बहला रही है, इसकी गजलों का सहारा लेती है, बच्चों को वही स्क्रीन पर थिरकती हुई हरकत करती हुई नाचती डांस करती तस्वीरें दिखाती है। वो बच्चा बचपन से अपनी आंखें खोलने के बाद फहशुरिया तस्वीरें देखकर उसी माहौल को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है। मेरी कौम की माँ बहनों, इस्लाम का उसूल और तरीका यह है कि अपने बच्चों को तुम खासी बना के पैदा करो, तुम अपने बच्चों के दिलों में बचपन से ही इश्क़ रसूल के घुट्टी डाल दो, अपने बच्चों को बचपन से ही आशिक़ रसूल वफ़ादार मुस्तफ़ा बनाओ। मेरी बहनों, आप कहोगे मौलाना साहब इसके लिए कोई तावीज़ बनती हो तो बना दो, या मौलाना ज़ाहिर साहब से कह दीजिए वो तावीज़ बना दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए कोई तावीज़ की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें अमल के मैदान में आने की जरूरत है। मेरी इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, आप बच्चों को दूध पिलाए। तालीम मुस्तफ़ा यह है कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए उस वक्त उसकी ज़बान पर कुरान करीम की आयतों का वजीफा हो, माँ कुरान की तिलावत करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ दुरूद पाक मुस्तफ़ा पढ़ती रहे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ नाते नबी गुनगुनाती रहे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ उस वक्त में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीहात करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ती रहे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ कलिमात खैर का विर्द करती रहे, बच्चा दूध पीता रहे। तो माँ के शिकम से पैदा होने वाला माँ की गोद में जब दूध पीते वक्त दूध पीने के जमाने में आयात कुरानिया की मिठास दूध के धार में बच्चा पिएगा तो वो बच्चा गौसे आजम ना सही, वली ये कामिल ना सही, कुतुब ज़माना ना सही, ख्वाजे आजम ना सही, मुजद्दिद आजम ना सही, मुफ्ती आजम ना सही, मुर्शिद कामिल ना सही, सैयद सालार ना सही, वारिस पाक ना सही, सैयद सालार मसूद गाजी ना सही, वो अपने वक्त का वली ये कामिल ना सही, लेकिन वो वलियों का गुलाम जरूर होगा, मुस्तफा का वफादार जरूर होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अमल की दुनिया में कदम रखो, बुराइयों का दामन छोड़ो, बुराई की दुनिया से बाहर निकलो, अपने शिकम से मुस्तफा की वफादार पैदा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा जब वफादार बनेगा तो तेरी कदर मंजिल भी करता नजर आएगा, मुस्तफा दार रहमत से मोहब्बत भी करता नजर आएगा। मेरे इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, तुम्हारा जो सबसे पहला जेवर है वो जेवर है तुम्हारा हया है, पर्दा है। हमारी इस्लामी रिश्ते की बहुत सी बहन बेटियां बन सबर कर मेकअप का सारा जो है सिंगार करने के बाद उसके बाद दिखाने के लिए रिया के लिए बाजारों मार्केटों मेलों में शादी ब्याह की तकरीबात में जाती है। मेरी कौम की माँ बहनों, घर पर जब तक रहती हो तब तक तुम्हारा होलिया इतना अबतर रहता है कि सबसे फटा और सबसे घटिया थर्ड क्वालिटी का जो कपड़ा होगा उसे तुम घर में पहन के रखती हो, लेकिन जब मार्केटों में जाती हो, बाजारों में शादियों मेलों में जाती हो, तब सबसे अच्छा वाला ओरिजिनल और सबसे खूबसूरत महंगा वाला लिबास निकाल के जाती हो। मेरी कौम की माँ बहनों, मुफ्ती साहब क़िबला के बयान से तुमने कुछ सीखा, कुछ अमल करने का ज़हन बनाया या नहीं? याद रखो, तुम्हें अपने आप को पर्दे के जेवर से आरास्ता करने की जरूरत, तुम पर्दे में हो जाओ। पर्दे में होने का मतलब ये नहीं कि चेहरे पर एक हाथ का घूंघट लटका लिया बस पर्दा हो गया, नहीं। पर्दे का मतलब ये है कि तुम्हारी आवाज बुलंद न होने पाए, तुम घर में ऊंची आवाज से बातें ना करो। बातें करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर के अंदर जोर से कुरान पढ़ती है, तवज्जो से सुनिएगा मेरी कौम की माँ बहनों, बातें जरा सी कड़वी है। कुछ औरतें सोच रही होंगी यार ये मौलाना लाए कहां से है। अब दोबारा अगर फिर जलसा करवाया और करवाने के बाद अगर चंदा मांगा गया तो सबसे पहला सवाल होगा कि मौलाना राहत को दावतें तो नहीं दी जाएंगी, अगर उनकी तकरीर होनी तो चंदा नहीं मिलेगा। मेरी कौम की माँ बहनों, बातें जरा कड़वी है मगर इसे आप संजीदगी से सुनो, इस पर अमल करने की कोशिश करो। सुनो, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर के अंदर बैठकर जोर से ऊंची आवाज में कुरान पढ़ती है जबकि पूरी दुनिया जान रही है कुरान पढ़ना ये सवाब का काम है, कुरान पढ़ना सवाब का काम है कि गुनाह का वजह? बोलिए आप। पीछे वाले मेरे भाई आप भी बोलिए, थोड़ा सा बोलिए आप। आप लोग डरते हैं क्या? मामला घर का शासन ज्यादा टाइट है क्या? थोड़ा सा मुस्कुराए, मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी का इरशाद सुनो, आका फरमाते घर के अंदर जो भी औरत बुलंद आवाज में, ऊंची आवाज में जोर से कुरान पढ़ती है, इतनी ऊंची आवाज में कि कुरान पढ़ने की आवाज घर से बाहर जाती है, तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं उस औरत पर अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत सवाब पाने के बजाय और लानत खुदाबंदी के मुस्तहिक बनती है। मेरी कौम की माँ बहनों, जब बुलंद आवाज से तुम कुरान नहीं पढ़ सकती हो, बुलंद आवाज से तुम नात नहीं पढ़ सकती हो, बुलंद आवाज से तुम तस्बीह नहीं पढ़ सकती हो, बुलंद आवाज से दुरूद पाक नहीं पढ़ सकती हो, तो बुलंद आवाज से गाना कहाँ गा सकती हो? बुलंद आवाज से तुम जगह में ढोल कूट कूट करके मरी चमड़ी और बेबुनियाद मनगढ़ंत कुफरिया गाने गाती हो। इन गानों का कोई सबूत या शहादत किसी किताब से नहीं है। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 23-24 साल हो गए, लेकिन आज तक के मैंने किताब में नहीं पढ़ा। मौलाना साहब आप पढ़े हो? अगर पढ़े होइए तो जरा मुझे भी दिखाइएगा। मेरी कौम के माँ बहनों, उन गानों में बहुत सी कुफरिया बातें तुम शामिल कर लेती हो, तुम्हें पता नहीं चलता, ईमान से हाथ धो बैठती हो। मेरी बहनों आप जागो, आप अपने हर काम को इस्लाम के सांचे में ढलकर अंजाम देने की कोशिश करो। जो नहीं जानती हो अपने बच्चों से पूछो, अपने शौहर से पूछो, अपने बाप से पूछो। अगर वो तुम्हारा मसला हल ना कर सके, उनसे कहिए कि जाओ और मौलाना साहब से, इमाम साहब हाफिज जी से पूछ करके आओ, वो बताए। वहां जाकर आप सवाल कीजिए, वो जो बताए वो पैगाम आप अपने घर के मस्तूरात खवातीन तक पहुंचाइए। जो बातें वो न जानती हो वो पूछती जाए, आप उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देते जाए। खुद ना जवाब दे सके तो अपनी जमात के उलमा से राब्ता करें, इनसे मिलकर मसला दरियाफ्त करें, उसके बाद वो मसाइल आप घर में बयान करें। यहाँ इतने हमारे भाई बैठे हैं, यहाँ कसीर तादाद में हमारी बहनें बैठी थी, लेकिन कुछ कड़वी बातों के तहत मैं समझता हूँ शायद वो चली गई हो, मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ इतने मर्द और भाई बहन हमारे बैठे थे, अगर सबका अलग अलग क्लास लिया जाए, एक एक आदमी का सबक सुना जाए, और ये उलमा आप सबका क्लास ले, क्लास में आपसे ये नहीं कहा जाएगा गौसे आजम ने कितने चिल्ले किए हैं, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा वजू में कितनी बातें फर्ज है, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज में कितनी बातें फर्ज है, नमाज में कितनी बातें शर्त है, वजू में कितने फराइज है, गुस्ल में कितने फराइज है, इस्लाम के अरकान क्या है, आप किसकी उम्मत में है, वगैरह वगैरह। ये जरूरी मसाइल जो आम फहम बातें हैं, अगर सब लोगों से पूछा जाए तो मैं समझता हूँ सब तो ऐसे नहीं है कि इन सारी बातों को जान रहे हो। कुछ लोग इल्ला माशाअल्लाह आपको चंद आदमी ऐसे निकलेंगे जिन्हें वजू करना भी आता होगा, गुस्ल करना भी आता होगा, नमाज पढ़ने का तरीका भी किसी कदर जानते होंगे, वरना अक्सर ये ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जिन बेचारों को वजू भी नहीं आता है, गुस्ल भी नहीं आता है, नमाज का तरीका भी नहीं मालूम है। इसलिए मैं आप सब से अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे भाई जागिए, होश में आइए, आप दीन सीखिए, शरीयत पढ़िए। शरीयत मुस्तफा की तालीम हासिल करने के लिए बचपना शर्त नहीं है। अभी आपने हदीस पाक मुस्तफा मुफ्ती साहब से सुना था कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ के शिकम से पैदा होने से लेकर कब्र में दफन होने तक आप इल्म हासिल करते रहेंगे, फिर भी इल्म मुकम्मल तौर पर आप हासिल नहीं कर सकते हैं। उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, आका फरमाते इल्म दीन सीखो, इसके लिए चाहे तुम्हें चीन तक क्यों न जाना पड़े। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े हो गए, पढ़ ना सके, आपने तालीम हासिल ना की, आप बाशऊर हो गए, आप बालिग हुए, 18, 20, 25 साल 30 साल के हो गए, ये 40, 50, 60 साल के हो गए, अब भी आपको वजू गुस्ल नहीं आता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें हया की कोई बात नहीं है। आप उलमाए किराम से मिलिए, उनसे धीरे से एक मसला पूछिए, उसे याद कीजिए, फिर दूसरे दिन दूसरा मसला पूछिए, उसे याद कीजिए। इस तरह धीरे धीरे करके जरूरत की बहुत सी बातें आप सीख सकते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश करकर, आप बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, मेरी कौम के नौजवानों 24 घंटे में 23 घंटा तुम कॉलेज की तालीम के लिए, उसकी मशगूलियात मसरूफियात के लिए रख लो, और 24 घंटे में 1 घंटा किसी आलिम दीन के पास कोचिंग या ट्यूशन करके आप इल्म दीन मुस्तफा हासिल करें, इल्म दीन सीखें। आप जहाँ इंजीनियर बनेंगे, जब आप डॉक्टर बनकर, जब आपकी IAS की तालीम मुकम्मल होगी, साथ साथ दीन के बहुत बड़े दानिश्वर आप हो जाएंगे, दीन के तमाम जरूरी मसाइल से भी आपको वाकिफियत हो जाएगी। मेरे पास बातें बहुत वक्त रही है, इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपसे मुलाकात हमारी आपकी होगी तो इंशाअल्लाह बहुत ढेर सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ आपके गाँव में शायद इस साल में एक
जलसे हो गया आप डरिए मत, मैं नहीं आऊंगा, आप इसके लिए तसल्ली रखें। अगर आप बुलाएं तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा, और अगर आप बुलाएं टाइम ना हो तो मैं माजूर रहूंगा, और अगर आप नहीं बुलाएंगे तब भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये दीन की महफिल डेकोरेशन के लिए, सजावट दिखाने के लिए, उलमा का चेहरा दिखाने के लिए ये जलसे नहीं करवाए जाते हैं। ये जलसे करवाए जाते हैं कौम को दीन सिखाने के लिए, शरीयत बताने के लिए, नबी की आज़मत बताने के लिए, खुदा की कुदरत को बताने के लिए, दीन का सबक पढ़ाने के लिए दीन के जलसे किए जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर चाहे तो हर 2 महीना 3 महीने पर चंद लोग 2-2, 4-4, 5-5 रुपए लगाएं और उसके बाद मुख्तसर इसका मीडियम साइज के जलसा आप कर लें, बहुत ज्यादा भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं। एक आलिम आप बुला लीजिए और जिस चीज की कमी हो अपनी बस्ती में, अपने महल्ले में, उस पर गुफ्तगू कुरान हदीस की रोशनी में करवाया जाए। आप वजू नहीं जानते हैं, आने वाले आलिम से कहिए हजरत आप वजू का तरीका हमें बताएं, आप गुस्ल का तरीका हमें बताएं। आज के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही सारी बातें तकरीर में ज्यादा पेश करता हूँ, इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा आप अपने ज़हन में बेदारी पैदा करें, सब लोग मिलजुल कर ये चाहे कि हमारी आने वाली नस्ल बिगड़ने के बजाय थोड़ा सा उसके अंदर दीन का माहौल हो, दीन की बेदारी हो, अगर ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा नहीं, इतने लोगों में सब नहीं, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला किसी 1-2 लोगों के दिलों में 1-2 बातें ही डाल दे जिससे इस पूरी महफिल का इनेकाद वसूल कामयाब हो जाएगा। बोलिए ये बात करामत मुफीद है कि नहीं? इंशाल्लाह इसके हवाले से आप तारीख की जवाब कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग जल्द से करेंगे। बोलिए आप डरिए मत, मुझे आप मत बुलाइएगा, अगर बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा, और नहीं मैं जिसको चाहिए उसे बुलाइए। आलिम दीन सुन्नी होने की आप सबकी खामोशी, आपकी ये बेतवज्जी इस बात की तरफ इशारा है कि हजरत हम लोगों को जल्द से जुलूस के से कोई मतलब नहीं, हमारी जरूरत भी नहीं है। आलिम साहब जितना बताएंगे उतना तो हम लोग पहले से एडवांस में जान रहे हैं, जभी तो आप इतना सुस्ती और काहिली से काम रहे नहीं मेरे भाई। ये आपकी है, ये पेशवा है, ये आपके अगवा है, ये आपके इमाम है, ये आपकी बात ही बताएंगे। ये खुद बताते तौर पर खुद भले कोई गुनाह का काम कर ले, लेकिन कभी कौम को गुनाह का दर्स नहीं देंगे, गुनाह का पैगाम ये आम नहीं करेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ अगर हर 2 महीना 3 महीने पर ये दीन की महफिलें मुनक्किद कर ली जाए तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके 2, 4, 6, 10 महफिलों के बाद कुछ लोगों में वजू का तरीका तो आ ही जाएगा, गुस्ल करना तो जान ही जाएंगे, धीरे धीरे करके लोग नमाज पढ़ना जान जाएंगे, फिर नमाज के फराइज़ और वाजिबातों और शराइत जन जाएंगे, नमाज के सारे मसाइल से आपको वाकियत हो जाएगी। और हमारे इस्लाम रिश्ते अगर हर जगह में ढोल तमाशा गाना सुल्ताना डाकू बनने के बजाय अगर हर जगहों में दीन की महफिलें करने लगे, जो पढ़ी लिखी बच्चियां हों, पढ़ी लिखी बहुएं हों, उनको इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद एक लड़की से कहिए आप लिखे नाते नबी पढ़ो, अगर वो बगैर देख कर नहीं पढ़ सकती हाथों में किताब थमा दो, बेटी देख कर नाते रसूल पढ़ो। दूसरी के हाथ में किताब थमा दो, बेटी तुम वजू करने का तरीका बयान करो, बेटी तुम गुस्ल करने का तरीका बयान करो, बेटी तुम नमाज पढ़ने का तरीका बयान करो, बेटी तुम पाकी हासिल करने का तरीका बयान करो। इस तरह 2, 4, 6 जगहों में हमारी माँ बहनें सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर वजू और गुस्ल का तरीका जान जाएंगे। अगर गुस्ल आपने सीख लिया तो जानते कितना बड़ा काम हो जाएगा, आपने पाक होना सीख लिया है। और अगर गुस्ल का तरीका आपको नहीं आएगा तो गोया कि अभी तक आप नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो इंसान नापाकी में इंतकाल करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह लेकर उसके घर से लेकर जहां जहां से गुजरते हैं, जमीन से आसमान तक हर जगह के मखलूक उस पर लानत और मलामत भेजती है। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में हमारी दुआ है, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के तमाम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।